10 વખત જાય તો 100 વખત લવાય. એટલે આ પાછું લાયા એને ઉપયોગ કહેવાય. ગયું એને જાણ્યું ને પાછું આવ્યું એને પણ જાણ્યું. આવું દાદા ભગવાન કે છે. એટલે ઉપયોગ ખાતી વખતે જમવામાં ઉપયોગ રાખવાનો, છોકરાઓને વાંચતી વખતે વાંચવામાં ઉપયોગ રાખવો, પ્લે વાઇલ પ્લે, વર્ક વાઇલ એવું નથી કહેતા, તો કે હવે રમવામાં તો ઉપયોગ રમવામાં. મેં દાદા ભગવાનને કહ્યું કે હું મારું સ્ટેટમેન્ટ બનાવું છું, નોકરી કરતો હતો. મેં કહું સ્ટેટમેન્ટ બનાવતા બનાવતા દાદા ભગવાન અસીમ જે કા ત્રિમંત્ર બોલું કે ના, તારે સ્ટેટમેન્ટ બનાવવા કરતી વખતે ચિત્તની હાજરી, સ્ટેટમેન્ટમાં તું શું લખે છે, કઈ ફિગર આવે છે, સાચું લખે છે, ફિગર બરાબર છે, નહીં તો પછી છેલ્લા તો ક્વેરી નીકળે ને, ખોટું લખ્યું હોય તો, ભૂલ થઈ હોય તો સાહેબ પાસે આવે તો કે ને આ તારી મિસ્ટેક છે, જોઈ લેજે ટોટલિંગમાં કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સ્ટેટમેન્ટમાં જે આવતું હોય. તો કે તમારી ચિત્તની હાજરીથી સ્ટેટમેન્ટ બનાવવાનું. તે વખત ચિત્ત દાદા ભગવાન અસીમ જે કારમાં નહીં બોલવાનું. ફાઇલ પતી ગઈ, સ્ટેટમેન્ટ બની ગયું, તો બીજા કામ આવવાનું બાકી છે. 2 કામ વચ્ચે એક રિસેસ પડે ને તારે તું બોલે તો ચાલે, ફાઇલ આવે તો ફાઇલનો નિકાલ કરવાનો. કેવી રીતે નિકાલ કરવાનો? ચિત્તની હાજરીમાં. એટલે આપણે કોઈ ફાઇલ આવે તો ચિત્તની હાજરીમાં કેવી રીતે નિકાલ કરવાનો? ફાઇલો નિકાલ કરવાનો પછી નહીં, ચિત્તની હાજરી. ચિત્તની હાજરીમાં તો પહેલા શુદ્ધાત્મા જોઈને ફાઇલો નિકાલ કરો. દાદાને કહેવાય દાદા ફાઇલો સંભાળ નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો. વ્યવસ્થિત શક્તિ મોકલે છે તો પછી હા, એટલે પહેલા વ્યવહાર દ્રષ્ટિ
એમના મમ્મી છે. अच्छा सोनल कौन આ મારી ડોટર. દીકરી આ સોનલ. દીકરી કે વહુ દીકરી. દીકરી. વહુ નહીં દીકરી કહેતો તો ત્યાં મારી વહુ નથી હા, દીકરી છે સન છે. હા દીકરો છે. અને આ દીકરી છે. અને વહુ એની એની બહુ કામે ગઈ છે કે નથી આવ્યા. બસ મેં તો છોકરીઓ છે ને એટલે નહીં બતા કહે છે. દીએ વહુને લોકો દીકરી કે છે કે અમારી વહુ નથી આવી છે. દીકરી હવે આવી એક દીકરી સાસરે ગઈ અને બીજી દીકરી ઘરે આવી અમારે જે એવી પ્રથા નથી પડી. ના આપણે ઇન્ડિયન તો બધા ના, વહુને દીકરી તરીકે રાખીએ છે ને દીકરી તરીકે જ રાખીએ. હા પણ ઓળખાણ તો બહુ તરીકે કરાવવી પડે. ના દીકરી તરીકે ને વહુ તરીકે બેવ કરાવાય એવી કરાવવાની. કે મારી વહુ છે પણ મેં દીકરી તરીકે રાખું છું ઈ આજે નવું એવી છે. ઓળખાણ કરાવાય ઓકે, સરસ. તમને રાખે છે દીકરી તરીકે તમારા સાસુ હવે આવ્યા. એ સાસુ वाला હિન્દી. हिंदी हिंदी आप आपकी बहू है कि दिकरी है पर दिकरी जैसे रखना बेटी जैसे रखना हाँ, हाँ. और आपकी डॉटर है वो शादी हो गया उसकी नहीं है દીકરાઈ है. दिकरी नहीं है आपकी શું કે? નથી છોકરીઓ तो आपकी लड़की नहीं है लड़के हैं इतने क्या આ જ છે મારી છોકરી લડકીને એને લડકી જ બનાવી દીધી છે. नहीं सन कितना है आपका 4 सन है हाँ अभी ये लड़की नहीं है आपके पास तो ये लड़की आ गई ने हाँ, ये तो आप लड़की बहू बनाई. बहू तो है व्यवहार से पर लड़की जैसे रखने का जैसे लड़की को कितना प्यार देते आप देते हैं न? इतना प्यार करना बहू से और बहू को भी मैं क्या बोलता हूँ जैसे मम्मी को प्यार करती है मम्मी के साथ तू रहती है ऐसे. इस तरह से सास के साथ मम्मी के जैसा व्यवहार करना दोनों साइड होता है ना वन साइड थोड़ी होता है हाँ તો તમારે તમે ગુજરાતી આવડે છે? હા, આવડે છે. તો તમારે મમ્મીને ઘરે મમ્મીની સાથે રહો ને એવી રીતે સાસુ જોડે રહેવાનું બરાબર ને બરાબર. हाँ સરસ આ બધું આવડી જાય તો અથડામણ થાય જ નહીં कुछ आपको पूछना है तो बात करना हिंदी में दादा भगवान का तो नाम सुना होगा ना? हाँ ये दिखते हैं फोटोग्राफ पे ये कोट टोपी वाले ये बोलते हैं मैं दादा भगवान नहीं हूँ मेरे अंदर जो प्रकट हो गए आत्म तत्व है वो दादा भगवान है मैं तो एम पटेल ज्ञानी पुरुष हूँ मेरे अंदर जो 14 लोक के नाथ प्रकट हुए ज्ञान दर्शन चारित्र तप उनका जो है कैरेक्टर वो दादा भगवान है और सबके आपके सभी में वही दादा भगवान विराजमान है दादा भगवान अरूपी है अरूपी यानी रूप नहीं है जैसे भगवान कैसे हवा हवा दिखती है आपको नहीं दिखती है. ये अरूपी बोलते हैं ये प्रकाश हाथ में आता है दिखता है ऐसे दिखता है हवा ठंडी आती है गर्मी आती है प्रकाश ना गर्म प्रकाश पर अरूपी बोलते हैं उसकी जो महसूस होते प्रकाश की गर्मी है पवन की गर्मी है पवन की ठंडी मगर वो दृश्यमान नहीं है दिखता नहीं है हवा ते दादा भगवान और रूपी बोलते उनका रूप नहीं है रूप जो दिखता है वो बाहर का है भगवान का जो बाहर दिखता है वो मंदिर है और मंदिर और भगवान दोनों अलग है ना जैसे हम देरासर जाते शिवालय जाते वो बैठक का जो वैष्णव के मंदिर जाते तो बाहर से मंदिर का दर्शन करते मगर पगथिया चढ़ के अंदर गभारा में जाएंगे तो अंदर भगवान का दर्शन भी होता है ना जैसे मंदिर और अंदर भगवान दो अलग हुआ ना इस तरह से ये इनका मंदिर है कोट टोपी वाले और अंदर जो प्रकट हुए वो भगवान है वो मूर्ति में तो दिखता है मगर ये भगवान कैसे चेतन तत्व है
मूर्ति में चेतन की प्रतिष्ठा की है पत्थर में, मगर इसमें जीवती मूर्ति बोलते हैं। जब जीवन थे तब अंदर भगवान जीवित थे। वो दादा भगवान का देह भी ले हुआ, उनका अग्नि संस्कार हुआ 88 में। दादा भगवान वो अमर हो गए, यानी कि उनका जन्म भी नहीं हुआ और मृत्यु भी नहीं हुई, देह की मृत्यु हुई। इसलिए क्या बोलते हैं शास्त्र में, भगवान कैसे है? अविनाशी है। कृष्ण भगवान ने बताया ना अर्जुन को, अर्जुन तू अर्जुन नहीं है, तू शाश्वत अविनाशी अजन्म अमर ऐसा कैसा आत्मा है? पानी से भीज भी नहीं सकता, शस्त्र से कट नहीं सकता, अग्नि से जल नहीं सकता, कायम का। तू अर्जुन तो तेरा नाम है। इस तरह से दादा भगवान कहते एम पटेल हमारा नाम है, मगर हम मेरा दरअसल स्वरूप जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उनको बताया ने, तो अर्जुन तो तेरा नाम है। अर्जुन के अंदर जो विराजमान है चेतन तत्व, वो भगवान है, वो खुद है आप। अर्जुन क्या मानता था? मैं ही अर्जुन हूं, मेरा नाम, मैं शरीरधारी नामधारी, मैं अलावा मुझे मालूम। तो ज्ञानी पुरुष कृष्ण भगवान भी आत्मयोगेश्वर ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण अर्जुन को अढ़ाड़ गीता अध्याय में ज्ञान दिया कि तेरा स्वरूप दरअसल तू कौन है। आप बोलते क्या नाम आपका? तुम्हारा नाम? कुमारी कुमारी बेन। कुमारी बेन। मेरा नाम कुमारी बेन है कि आप कुमारी बेन है? हु आर यू? हु आर यू? कुमारी कुमारी। बेन। इट इज योर नेम, यस माई नेम। तो बोलते हैं ना, माई नेम, यस माई हैंड, माई नोज, माई आईज, माई ईयर, माई बॉडी। तो माई, जहां जहां माई लगता है देर इज आई बिहाइंड इट, बराबर है? बराबर। हाँ, तो आई कौन? मैं हाँ, वही बोलता हूँ। आप तो बोलते हैं ना मेरा नाम है, मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, ऐसा बोलते आप? मेरा शरीर है, मेरा वॉच है। तो वॉच और मैं अलग हुआ कि ना हुआ? तो ये तो मैं निकाल भी सकता हूँ, ये अलग हो गया ना। तो आप बोलते आई एम माइंड के माई माइंड? आप क्या बोलते? माय माइंड। हाँ, तो वहां जहां जहां माई आता है, आई एम नॉट माइंड, माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम आई, के नहीं? माई नोज, माई आई, माई इंटेलेक्ट। तो दादा भगवान ने खोज की 1958 में, ज्ञान हुआ हु इज आई। तो उन्होंने पता पड़ा आई एम नॉट आई, दिस इज माई बॉडी, आई एम प्योर सोल, शुद्ध चेतन आत्मा, प्योर सोल, दैट्स इट आई। तो आपके अंदर भी प्योर सोल है कि नहीं? चेतन तत्व बोलते हैं ना, उनका ज्ञान उनको हुआ 1958 में। और जो जो उनको मिले उसको आई एंड माइक का जो वेद विज्ञान से, इनकी सिद्धि से, वो आई और माई ज्ञानी पुरुष की ज्ञान से सेपरेशन हुआ। सेपरेशन है, अंदर अलग ही है। कैसा अलग है? आत्मा और शरीर दरअसल अलग है। जैसे पानी में तेल की बूंद डाले तो जितना भी हिलाओ तो तेल पानी में मिक्स नहीं होता है, वो खाने का तेल होता है ना। जैसे माखन निकाला, घी, वो दूध का माखन बना ने, जो हम खाते हैं, घी बनाते बाद में जो, तो माखन और छाछ कितने भी हिलाओ, माखन एक बार निकल गया तो छाछ में वो मिक्स नहीं होता है, अलग। ऐसे आत्मा शरीर अलग ही है,
मगर अपने बिलीफ क्या है, मैं ही शरीर, वही अज्ञानता, वही अहंकार, और मैं करने वाला हूं, वो भी अज्ञानता। दादा भगवान बोलते ये जगत में कोई स्वतंत्र करता नहीं है। इसलिए बोलते चाय बनाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मैंने चाय बनाया, तो आप निमित्त है। और चाय बनाने में क्या क्या चाहिए, चाय चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, माचिस के लाइटर के, जो भी मसाला चाय का, दूध चाहिए, दूध नहीं होगा तो चाय बनेगी, शक्कर चाहिए, चाय की पत्ती नहीं हो, गरनी भी चाहिए। तो चाय बनाने वाले की तबीयत अच्छी चाहिए, और चाय पीने वाला भी चाहिए। इतना सारे संजोग आए, चाय कब बनाते, कि जब संजोग इतना सब इकट्ठा होता है। आपको बोले इधर चाय बनाओ तो बनाएंगे, जी हाँ है? जी हाँ हाँ, इधर बैठ के बना सकते हो, ऐसा पीते हो। इधर रहने की, हाँ कि आप बोले भाई इधर कैसे बनाऊं, मेरे को तपेली चाहिए, सांसी चाहिए, गैस चाहिए, चाय की पत्ती, दूध चाहिए, तो किचन में जाना पड़ेगा ना। तो किचन में जाए, इधर बैठे बैठे थोड़ी बनाएंगे, नहीं। सब चीज चाहिए ना, ऐसा हाँ, बोलता हाँ। हूँ। आप क्या बोलते हैं, मैंने चाय बनाई। तो कितने भी संजोग इकट्ठे होते, तो वी आर वन ऑफ द एविडेंस, निमित्त। तो दादा भगवान ने क्या बताया, सो मेनी साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंस, सब इकट्ठा होता है, तब हम बोल सकते कि हम वो सभी संजोगों करता है, उसमें हम निमित्त है। और चाय अच्छी बनाई तो आप खुश हो जाएंगे कि मैंने बनाई। कोई बोले चाय तो बराबर नहीं बनाई, मजा नहीं आई, तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि आप चाय बनाने वाले हैं। अच्छी बनाई तो एलिवेट हो गए, बराबर नहीं बनाई तो डिप्रेस हो गए। इसलिए दादा भगवान बोलते यू आर नॉट मेकर, यू आर नॉट डूअरशिप। डूअरशिप यानी कि करने वाला, तो संजोगो करता छे। कौन डूअरशिप, संजोगो करने वाला है, हम उसमें वो संजोगों में एक एविडेंस है, निमित्त बोलते। जैसे बताएं चाय का दाखला, कितने बड़ी सारी चीज चाहिए, आप इंडिपेंडेंटली बोल नहीं सकते मैंने चाय बनाई। इतने सब चीज, इतने सब संजोग, सब इकट्ठा होता है, तो हम बनाने वाला एक बड़ा निमित्त तो है। इस तरह से जगत में ये सब जगत चलता है, निमित्त नैमित्तिक से चलता है। सूर्य, चंद्र, रात, दिवस, ये धूप आ गई, फिर वो देखो अभी बादल आ गए, कोई 10 मिनट के पहले तो धूप आई थी। कभी संजोग बदला जावे, बारिश भी आ जावे। वो आज तो सुना, बरोड़ा फोन किया था, वो पंजाब में रेल आई, बहुत रेल आई, सुना ही नहीं बस कोई समाचार। रेल यानी कि क्या, फ्लड, फ्लड है। पंजाब की बात है। और अभी बरोड़ा बहुत बारिश है, अहमदाबाद में फ्लड आई, फ्लड आई, એટલો બધો વરસાદ, તો પંજાબમાં તો બહુ સાફ કરાયા છે પણ હવે તો એ સેમ નું સેમ જ છે. ફ્લડિંગ થઈ ગયું મિડનાઇટમાં. હા, એટલે ક્યારે ફ્લડ આવે રાતોરાત, એટલો બધો વરસાદ પડે, तो वरसाद जो गिरता है वो कितने सब बादल इकट्ठे होते हैं और बारिश एकदम गिर जाएगी। और कितने बादल आए, तभी आएगा अभी आएंगे, तो बारिश ही नहीं आती। तो देर आर सो मेनी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इकट्ठा होता है तो फ्लड आता है, अर्थक्वेक धरतीकंप अपने आप होता है, सुनामी अपने आप होता है, कोरोना अपने आप हुआ, तो बोलते कोरोना अपने आप हुआ। तो कितने सारे बोलते चाइना वाला ने प्रोड्यूस किया, कोई इसको संदास जाने की स्वतंत्र, दादा भगवान बोलते आपको लेटरिन जाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, ऐसा बोलते थे। इतना गंदा गंदा बोलते थे दादा भगवान। कोई बोलते संदास जाने की, वो नहीं वॉशरूम में जाते, आपको बोलो इधर बाथरूम जाके आओ, नहीं नहीं अभी मुझे लगी नहीं है,
कैसे जाएंगे? और लगने के बाद आप रुक भी नहीं सकेंगे। तो दादा भगवान एक सेंटेंस ऐसा बोला, ये किसी में स्वतंत्र शक्ति वॉशरूम में जाने की नहीं है। तो कि तो स्वतंत्र शक्ति कहाँ से आई? तेरा सो मैनी, आंख से दिखाई दे कि आंख से नहीं दिखाई दे, ऐसे स्थूल संजोगों सूक्ष्म संयोगों कितने सारे संयोग इकट्ठा होता है तो एक्सीडेंट होता है। अपने आप एक्सीडेंट नहीं होता है, अपने आप वर्ल्ड वॉर नहीं होता है, अपने आप धरतीकंप नहीं होता है, सुनामी अपने आप नहीं होता है। फ्लड आया तो उधर ही क्यों आया? पंजाब में थोड़ा, अहमदाबाद में आया, सूरत में नहीं आया, मुंबई आया था। तो कहाँ बारिश ही नहीं गिरती, कहाँ इतनी सारी बारिश गिरती? तो ये सब साइंटिफिक सर्कम्स एविडेंस यानी कि संजोगों करता है। आदमी को चाय बनाने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। नहीं तो चाय की पत्ती की जरूरत नहीं, बर्तन की जरूरत नहीं, लाइटर की जरूरत नहीं, खुद बना सकते। नहीं नहीं, सब चाहिए। देर आर सो मेनी साइंटिफिक circumstantial एविडेंस टुगेदर, देन वर्क विल बी डन। तो यू आर नॉट डूअरशिप। डूअरशिप यानी, समझ में आया? मैं करने वाली हूं, मैं करने वाला हूं। तो दादा भगवान बोलते हैं कि हम हमारे जीवन में इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसका सब दोष अर्पण करते। हकीकत में स्वतंत्र शक्ति नहीं है डूअरशिप की। एक ज्ञान ऐसा है, हकीकत में हम कौन है और ये करता कौन है, जगत कैसे चलता है, ये सब दादा की बात है। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछना। આપણે हाँ દાદા ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપે છે, તો એ જ્ઞાન વિશે થોડુંક કહો કે what हाँ is it, કે શા માટે हाँ। વગેરે। तो ये क्या है जो आपको बहन जी ने पूछा ना, ज्ञान क्या है? ज्ञान यानी कि हम खुद कौन है, हु एम आई, जो बात निकली ना अभी, ये शरीर वो ही हमारा सच्चा स्वरूप है। नामधारी हम जो है, शू नाम कीधું એમને? कुमारी बेन। कुमारी बेन, मैं ही कुमारी बेन, वो अज्ञान थे। कुमारी बेन तो है आप, वो तो शरीर का नाम है। तो ज्ञान क्या है? हकीकत में आप कौन है? अज्ञान क्या है? कि आप खुद कुमारी बेन नहीं है। कुमारी बेन तो आपका नाम है, शरीर का नाम है, देह का नाम है, मगर हम वो एक शुद्ध चेतन आत्मा है। तो ज्ञान क्या बोलते हैं? आप खुद जो है वो उसको समझदारी प्राप्त करने का ये सब्जेक्ट। अज्ञान क्या है? जो आप खुद नहीं है और मानते हैं कि मैं कुमारी बहन हूं, उसको अज्ञान बोलते हैं। आप खुद करने वाले नहीं है, निमित्त है, वन ऑफ द निमित्त। तो ये क्या बोलते हैं? मैंने चाय बनाई। अरे आप डूअरशिप है, कुछ करने वाले हैं, तो इंडिपेंडेंट चाय बना नहीं सकते। एग्जाम्पल दिया ने, देर आर सो मेनी एविडेंस टुगेदर टू मेक टी। तो इस तरह से अज्ञान क्या है? मैं करता हूं, सामने वाला करता है, और ये अज्ञान है। डूअरशिप, हकीकत में आप मानते हैं कि मैं करती हूँ, वो डूअरशिप, वो अज्ञान है। आप मानते हैं मैं हूँ शरीर, वही मैं हूँ, वो अज्ञानता है। तो सही ज्ञान क्या है? ये संजोगों करता है। और मैं कौन हूँ? शुद्ध चेतन आत्मा, वो मैं हूँ। वो दादा भगवान ने 1958 में 50 साल की उम्र थी, तब दादा भगवान को हु एम आई, हकीकत में ये अंबालाल मुर्जी भाई पटेल, वो देह का नाम था, शरीर का नाम था, वो उसका मन वचन काया कि जो मालिकी भाव था, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि,
इस माली की भाव निकल गया और मैं शुद्ध चेतन आत्मा, ऐसा उनको 1958 में सूरत के सरनेम सूरत हाँ रेलवे स्टेशन पर, सूरत प्लेटफॉर्म है ना, अहमदाबाद बड़ौदा ऐसे सूरत है, सूरत के रेलवे स्टेशन पर 3rd नंबर पर बाकड़ा हो ने बोलते ने बेंच बैठक, उधर बैठे थे और ट्रेन आने का 1 घंटा बाकी था, बॉम्बे से आने वाली ट्रेन। तो उसको ज्ञान हुआ हकीकत में मैं कौन हूँ, शरीर हुई मैं हूँ कि शरीर से मैं अलग, ऐसा शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। बट नेचुरल हुआ, कुछ किया नहीं, कुदरती ज्ञान हुआ। और वही ज्ञान कितने सारे लोग को आत्मज्ञान की प्राप्ति कराई। वेद विज्ञान बोलते मन वचन काया से आप तद्दन भिन्न ऐसे शुद्धात्मा है। मन वचन काया वो तो शरीर का नाम है, जैसे मंदिर है और अंदर भगवान की मूर्ति है, दोनों अलग है ना। जब भगवान की मूर्ति जब नहीं डाली तब हम बोलते हैं कि मंदिर बनाया, और भगवान की मूर्ति अभी रखा नहीं है, उसकी बाकी है लाने का, प्रतिष्ठा करने का, बनती है। तो पहले मंदिर बनता है, फिर मंदिर में रखने का भगवान की मूर्ति रखते हैं। इस तरह से ये अंदर बैठे हुए चेतन तत्व वो भगवान है, वो अब भगवान, और वो मंदिर दिखता है एम पटेल रूपी, वो मंदिर है। तो हम क्या बोलते हैं, मैं शरीर मैं हूं, तो दादा भगवान बोलते क्या है कि शरीर तो तेरा नामधारी है, शरीर है, तू शरीर में रहने वाले शुद्ध चेतन आत्मा हूं। जैसे बोलते हैं ना, घर घर है, घर का नाम है, और घर घर है और घर में रहने वाले हम। नाम दिया है, आपका मकान का नाम है कुछ जो रहते हो? हाँ तो मान ले कि भाई राम निवास, इंडिया में सब कृष्ण कृपा, राम निवास, जलाराम कृपा, शिव शक्ति, ये सब देते हैं ना मकान का नंबर प्लेट कभी कभी लिखते, मातृ छाया पितृ छाया ऐसे नाम लगाते। तो मातृ छाया के पितृ छाया लिखा है स्टील के अक्षर से ऐसे, ये तख्ती बोलते मकान की। और मकान और तख्ती दोनों अलग हो गए। और मकान में रहने वाले कोई होगा कि नहीं? तो मकान बनाया आलीशान, तख्ती भी बहुत सोनेरी बनाया, गोल्डन प्लेट बनाया, तो मकान में रहने वाले नहीं हो गए तो मकान की कीमत है कुछ नहीं। 50 करोड़ का मकान है, क्या मकान में रहने वाला कोई नहीं है? जैसे आपने जोधपुर जयपुर वो राजा का महल, गायकवाड़ का महल अपने देखने जाते हैं ना बड़ौदा में, और सब वो बड़े बड़े राजा महाराजा ताजमहल देखने गए, फिर उधर गए जोधपुर में बड़े किले, पर रहने वाले कोई नहीं है। पहले थे राजाओं, उसके वंश से। इस तरह से घर में रहने वाला नहीं है, वो निकल गया तो मकान की वैल्यू कितनी होगी? हवड़ हो जाएगा, जर्जरित हो जाएगा, वो कितने कचरे सब बावा और जैसे जाड़ी सब लग जाएगा। तो रहने वाले की कीमत के मकान की कीमत? हाँ, इस तरह से शरीर और अपने रहने वाले जो चेतन तत्व है, ये चेतन तत्व निकल गया तो मकान की कीमत है? मकान में रहने वाला नहीं है तो मकान की कीमत कैसी हो जाएगी? कीमत नहीं रहेगी, हवड़ हो जाएगा। 50 साल तक पड़ा रहेगा तो कैसा होगा? तो भगवान जो अंदर है रहने वाला, वो कैसा है? अविनाशी है। और शरीर कैसा है? विनाशी है। शरीर को जलाते हैं, अंदर चेतन तत्व जलता नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कैसा बोला कि तू अर्जुन तो तेरा शरीर का नाम है, तू एक शाश्वत आत्मा हो। वो आत्मा चेतन तत्व कैसा है? शस्त्र से काट नहीं सकते,
अग्नि से जल नहीं सकते, पानी से भीज नहीं सकते, अव्याभात स्वभाव का है, बाधा पीड़ा शरीर को होती है, आत्मा को नहीं होती है। अग्नि से जल ही नहीं सकता, शस्त्र से कट नहीं सकता, तो उसको दुख कैसा टच होगा? ऐसा तू आत्मा हूं, तू अर्जुन तो तेरा नाम है। कृष्ण भगवान ने गीता में 18 गीता सुना है ना गीता। तो कहाँ के रहने वाले? इंडिया में? नहीं, इंडिया से नहीं। तो मॉरिशस। મોરેશિયસ Mauritius. मॉरिशियस। પછી तो भी हिंदी आती है तो अच्छा है। હમ. तो अर्जुन गीता सुना है आपने? अर्जुन कृष्ण भगवान, मॉरिशियस में गीता का नाम है, भगवान कृष्ण का है। માઇન્ડ બધું બધું છે? સાંભળ્યું सब कुछ। खाली गुजराती हिंदी आती बराबर। और कौन सी आपकी लैंग्वेज? मॉरिशियस भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी भोजपुरी। बोलते हैं। भोजपुरी। એ કયા આવ્યું મોરિશિયસ? એ તો જાણે ના, મॉरिशस બીજો African- દેશ છે? ના, આફ્રિકાના કોસ્ટ ઉપર નાનું આઇલેન્ડ છે. આઈલેન્ડ કયા? એટલે ઈ લોકો પેલા ત્યાં કેટલા generations થી છે હજુ ઈ લોકો હજી ઈ લોકો હવે આ પેલું generation આયા આઈલેન્ડ કયા આગળ આવ્યું? આફ્રિકાની બાજુમાં. એટલે સાઉથ આફ્રિકા બધું આપણે South India Africa થી બાજુ. around 3 to એટલે સાઉથ આફ્રિકા બાજુ. South Africa. ગુડ સાઈડ ઓફ જો ઇન્ડિયા ઘર ઇન્ડિયા ગુડ સાઈડ ઓફ ઇન્ડિયા ઇન્ડિયા નહીં આપણે આની ભાષા આફ્રિકાનો મેપ હોય ને આફ્રિકામાં. हाँ 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 छे अभी घर है उधर आइलैंड में? रहते हैं कोई? ये हमारे घर में कोई नहीं रहता है. नहीं, उधर घर है, घर में रहने वाला कोई नहीं। સબ ઇધર ફેમિલી નાની ને બધા યા જ છે હજી. છે. ભાઈ એટલે બહેન holidays માં બધા ત્યાં છે હજુ. હજી છે યા. पर તમારા ઘરમાં કોઈ નથી? એટલે- आपके घर खाली है? Yeah, ताला लगा है? એટલે હા એટલે અમે જાય ત્યારે खोलो। ખોયો. હા हाँ वही बोलता हूँ, घर की कीमत कब है? घर में रहने वाले नहीं है तो घर के ताला लग जाएगा। છે तो ऐसी ये दादा भगवान बोलते, ये घर है शरीर। शरीर क्या है? घर है। घर का नाम दिया, क्या दिया नाम उनका? કુમારી. कुमारी बेन। घर का नाम क्या है? कुमारी बेन। और कुमारी बेन का शरीर और अंदर चेतन तत्व भगवान है। भगवान नहीं है तो घर कैसा हो जाएगा? जर्जरित हो जाएगा। जर्जरित यानी कि क्या? अभी घर में ताला लगा है ना, तो थोड़ा अच्छा भी रहेगा, थोड़ा जा सकेंगे। ये घर में ताला कब लग जाएगा? भगवान निकल जाएगा। फिर कोई बोलते रखो ने, નહીં રખે શું નામ એમનું? કુમારી कुमारी बहन को रखो, નહીં કોઈ નહીં રખે 10-15 दिन महीना तक रखो। रखेंगे? कीमत कुमारी बहन की कब है? अंदर भगवान बैठे, चेतन तत्व है, वो आपका दरअसल स्वरूप है। हम मानते मैं कुमारी बहन हूँ, पर हकीकत में दादा भगवान ने क्या बोला? कुमारी बहन तो एक देह का नाम है, घर है, શરીર और घर शरीर है, और शरीर का नाम कुमारी बहन है। कुमारी बहन अलग, कुमारी बहन का शरीर दिखता है अलग। जैसे घर की तख्ती बोलते हैं ना, राम निवास, कृष्ण कृपा, और घर अलग, तख्ती अलग, और घर में रहने वाले हम, वो हमेरी कीमत है। हम नहीं हो गए तो शरीर को तो जला देंगे। કિંમત નહીં तब भगवान है अंदर तो हम खा सकेंगे, पचा सकेंगे, ब्लड का परिभ्रमण होगा, आंख से देख सकते, कान से सुन सकते, माइंड से विचार कर सकते, हाथ पाव, वो अंदर चेतन तत्व है, तब घर की वैल्यू है। बाकी आप वो घर में, कुमारी बहन के घर में रहने वाले आप है। आप यानी कि आपका दरअसल स्वरूप, वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वो बताया कि तू हकीकत में अर्जुन नहीं है, अर्जुन तो तेरा घर है, वो घर का नाम अर्जुन है। ये अर्जुन शरीर है, शरीर का नाम अर्जुन है, और तू घर में रहने वाला, तू कायम का ऐसा आत्मा है। तेरा मरण नहीं होगा, शरीर का मरण होगा। तू डरता क्यों है?
तू मरने वाला नहीं है, शस्त्र से कोई काट भी नहीं सकते, अग्नि से जला भी नहीं सकते, ऐसा तू शाश्वत यानी कि कायम का आत्मा है। आत्मा ही नहीं कि चेतन तत्व, परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान, ऐसे हमारा दरअसल स्वरूप वो है। वो दादा भगवान को 1958 में दरअसल स्वरूप का ज्ञान हुआ। एम पटेल उनका नाम था और शरीर है एम पटेल का ये कोट टोपी वाले, और अंदर जो आत्म तत्व प्रकट हो गए वो खुद भगवान अंदर हो गए। आप भी खुद भगवान है, परमात्मा है, सब लोग है, आप ऐसा नहीं। तो आपकी पहचान नहीं है, आपका दरअसल घर का पहचान नहीं है, उसका ज्ञान हो जावे तो आपको मालूम पड़े मैं शरीर से अलग हूँ, ऐसा दादा भगवान का ज्ञान है। और करने वाले कौन है? संजोगों करता है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, रात दिन, रेनी सीजन, गर्मी सीजन, सब है ना, ठंडी की सीजन, ये कुदरत चलाती है। ये दुनिया कौन चलाते है? हाँ, कुदरत भूल जाएगी, अभी दिन होगा शाम होगा, अपने भूल जाएंगे स्विच पाड़ने का, जो भी लाइट करने का। तो कुदरती सब व्यवस्था है। जैसे कंप्यूटर है ना, जैसे हम कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं ना, फिर कंप्यूटर रिजल्ट देते हैं ना, तो कंप्यूटर है ये, वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे डेटा हम डालेंगे तो कंप्यूटर द फीड होता है और रिजल्ट अपने को देते हैं। ऐसे ये कुदरत क्या है? ये समष्टि कंप्यूटर है, बड़ा कंप्यूटर है। तो अपना ही कर्म, वो स्वतंत्र नहीं है, अपना ही जो कर्म का हिसाब, अपना ही भाव है। अपने ऐसा है चोरी नहीं करने की है तो कंप्यूटर में जाएगा। फिर अभी चोरी करते आप, एग्जाम्पल देता हूँ, आप चोरी नहीं करते मगर एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपसे झूठ बोल निकल जाता है, कुछ चीटिंग हो जाता है, मगर आप भावना करेंगे ने, हे भगवान, जो जिसको माता है, माता जी को, जो भी, मुझे मेरी गलती से मुझे क्षमा करो, फिर से मुझे चोरी नहीं करने की है, झूठ नहीं बोलना का है, गुस्सा नहीं करने का है, किसी को दुख नहीं देना है। वो भाव कंप्यूटर में जाएंगे, समष्टि कंप्यूटर कुदरत में, और इसका रिजल्ट फिर जैसे डेटा गया कुदरत के अंदर, तो ही फिर आपका वर्तन, बिहेवियर, वो इस तरह से, जैसे भावना भाविए, भावे दीजिए दान, भावे भगवान को आराधिए, भावे केवल ज्ञान, ऐसे एक जैन में गाथा है। तो भाव की कीमत है, क्रिया की कीमत है, और क्रिया इज रिजल्ट ऑफ भाव। क्रिया यानी कि जो आप परीक्षा देते, एग्जाम में देते, लिखते, वो क्रिया बोलते। कैसा लिखा है उसके हिसाब से रिजल्ट आता है, रिजल्ट यानी कि इफेक्ट। तो क्रिया इज इफेक्ट। जैसे एग्जाम में भाव किया, अच्छी तरह से लिखा, सिंसियरली लिखा, ऐसा ही रिजल्ट आएगा ना। तो दादा भगवान पूरी जिंदगी, जन्म से मृत्यु तक, दो साइमल्टेनियसली क्रिया चलती है, अंदर की, बाहर की नहीं। जन्म से मृत्यु तक जो बाहर दिखता है वो पूर्व के भाव की रिजल्ट है, और रिजल्ट भोगने के टाइम अंदर नेगेटिव में भी पॉजिटिव, दोनों पुरुषार्थ चलता है। तो नेगेटिव पुरुषार्थ चलता है, नेगेटिव विचार आता है, उसको आप माफी मांग के सुलटा दे सकते, सुलटा कर सकते पॉजिटिव में। एंड किसी नेगेटिव मीन्स क्यों, एग्जाम्पल देता हूँ, किसी के लिए ऐसा लगा कि मैं देख लूंगी उसको, उसने मुझे अपमान किया ने, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, ऐसा मन में विचार आया, नेगेटिव का। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, मुझे नेगेटिव विचार आया, मैं क्षमा चाहती हूँ, और मुझे क्षमा करो, फिर से ऐसे नेगेटिव विचार नहीं आवे, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करो। पॉजिटिव आता है किसी को हेल्प करने के लिए,
किसी को हर्ट नहीं होता है, उसका माफी नहीं मांगने का। और कोई विचार के वाणी, विचार और वर्तन जैसे दुखदाई होता है, उसका हम माफी मांगने का। तो माफी मांगा तो कुदरत का कंप्यूटर में गया, फिर वर्तन ऐसा आएगा। हम क्या बोलते कि वर्तन सुधारो सुधारो सुधारो, वर्तन ऐसा नहीं सुधरेगा आपका। फिर वर्तन के पीछे भाव सुधरने का। क्रोध आ गया तो आप कुछ पूछे कोई, क्रोध क्यों किया बहन जी इतना साथ जा, तो आप क्या जवाब देंगे? दो जवाब है, ये भी हो जाए। करना नहीं है छत हो जाता। दूसरा जवाब क्या है? करना जैसा है, नहीं तो लोग सीधे नहीं होते। वो भी जवाब है। कर नहीं करेंगे ये लोग हमारी सुनेंगे नहीं, वो मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो इसलिए क्रोध का आपने रक्षण किया, क्रोध किया और ऊपर से उसको खुराकी दी। तो दादा भगवान के कोई भी गलती हो गई तो उसका प्रोटेक्ट मत करो, उपराणा मत लो। वो वीकनेस है, गलती मीन्स वीकनेस, जो भी है वीकनेस। तो वीकनेस को हम निकालने के लिए मनुष्य अवतार मिला है। सभी वीकनेस निकल गई थी इनको 1958 में, तब भगवान प्रकट हुए। अपने भगवान अंदर है, मगर कर्म रूपी बादल, वीकनेस रूपी बादल, तो भगवान ढंके है, उन्होंने खुला हो गए। भगवान को पूछा, यही जगह मिली। उन्हें एम पटेल ने भगवान को पूछा, इतना सारा प्रकाश ब्रह्मांड का, सब प्रकार का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सब इतना, तो इसको आश्चर्य लगा कि भाई ये जगह मिली। तो अंदर भगवान जवाब आया, कितने अवतारों से भूलों की माफी मांगते 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 संपूर्ण भूल निर्मूल हो गई। कितनी बड़ी बात है। ये प्रभु भगवान का प्रागट्य हुआ। तो हम बंधे किससे? भूलों से बंधे हैं। क्या मालूम पड़ा? ये ज्ञान क्या है कि सब भूलों अपनी जितनी ज्यादा दिखाई दे, इतनी हमारा अंदर की दृष्टि ज्ञान की बढ़ेगी। तो व्यवहार में दादा भगवान ने बताया, आप ऐसा नक्की करो कि मेरे मन वचन काया से किसी को दुख न हो न हो न हो। वो धर्म की शुरुआत होती है। धर्म की शुरुआत कहाँ होती है? और कोई दुख मन से, वाणी से, व्यवहार से निकल गया तो हम उसकी माफी मांगने का। क्यों आपने गुस्सा किया वो नहीं, भगवान वो नहीं देखते। गुस्सा करने के बाद आपने क्या किया, माफी मांगा कि गुस्सा किया, वो करने जैसा था। आपको कैसा रहता है? बहन जी को पूछता हूँ, गुस्सा आ गया तो करने जैसा है कि मेरी गलती, ऐसा महसूस होता है? गुस्सा गुस्सा आता है तो नहीं करने जैसा होता है कि करने जैसा होता है? कभी कभी करने जैसा होता है। हाँ, तो कभी कभी होता है ना, उसका दिक्कत नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। जैसा कभी हो जाए ना करने जैसा है, तो अपने को मालूम पड़े कि दिस इज माय वीकनेस, के स्ट्रांगनेस, स्ट्रांगनेस के वीकनेस। गुस्सा आया वही वीकनेस है। तो कोई को किसी को लगता है मैंने गुस्सा किया, दिस इज करने जैसा है। तो स्ट्रांगनेस। अगर बच्चों पर गुस्सा है तभी माफी मांगनी चाहिए। माफी तो क्या, बच्चे के संस्कार के लिए हम गुस्सा करते हैं तो डांटना ही चाहिए उसको, दो हम टपली भी देना चाहिए, क्योंकि उसके संस्कार के लिए है। फिर भगवान से माफी अभी बड़ी हो गई तो ऐसा, बड़ा होगा नहीं, छोटे बच्चे को क्या है, मैच्योरिटी के बाद डांटना पड़े, ऐसा नहीं कुछ। कोई रसोई अच्छी नहीं आती तो उसको डांटेंगे तो रसोई अच्छी बनाएगी। नहीं तो ऐसे वाला मम्मी तो कुछ बोलती नहीं है, चलो जैसे बनाए कोई दिक्कत नहीं।
हाँ आपको डांटना पड़ेगा એવું નથી. तो उनके पुण्य बनेगी, उनके संस्कार के लिए डांटते ने तो दादा भगवान कहते हैं पुण्य बनेगी आपकी, अच्छा काम के लिए डांटे, तो आपको हैबिट ना हो जावे इसलिए माफी मांगने की। हैबिट यानी कि फिर बार बात बात में डांटने का, इसलिए जो भी अंदर से अंदर भगवान की माफी मांग लेने की हैबिट न बने। अच्छे काम के लिए डांटने का, हस्बैंड को भी डांटने का, ऐसा नहीं है लड़की को। हस्बैंड कोई बुरी आदत में चला गया तो उसको भी डांटने का, क्योंकि उससे संस्कार के लिए डांटते हैं ना। હમ. वाइफ नहीं डांटेगी कौन डांटेगा? फादर मगज से तो अलग हो गए तो आप दो ही है, बच्चे डांटेगा तो पसंद नहीं आएगा। तो अपने जो रिश्तेदार है, ब्लड रिलेशन है, क्लोज रहने वाला है, तो एक दूसरे की गलती दिखाने की और હમ. प्यार से दिखाने की कि मुझे मुझे ऐसा लगता है, ये हरकतों करते आप, इतनी आदतें हैं बुरी, जो भी है हमें जानने की जरूरत नहीं, पर आप प्यार से बोल सकते। नहीं बोलेंगे तो उसको क्या लगेगा, मैं करता हूँ वो ठीक हूँ। ના રાઈટ. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत नजदीक है हम उसको, तो प्यार से कहने का, और वो कहने के बावजूद उनको दुख होता है तो हम माफी मांगने की भगवान से। हाँ, अपने हस्बैंड को रूबरू माफी मांगे, और हस्बैंड खानदान है, नहीं तो ऐसा लगे जो कैसी सीधी आई अभी माफी मांगने आई ने, ऐसे उसका अहंकार खड़ा हो जाता है, तब रूबरू माफी नहीं मांगने की। तब अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा भगवान मेरे से इतना हमको हर्ट पहुंचाए, कुछ भी उनको नाराज हो गए, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। किसके साथ? हस्बैंड के अंदर बैठे हुए भगवान। दादा भगवान बोलते हैं, भगवान माफी देंगे, व्यक्ति नहीं दे सकती, देगी कि नहीं भी देगी। भगवान तो ऐसे निष्पक्षपाती है, वो अवश्य आपको माफ कर देंगे। હમ. ये साइंटिफिक प्रयोग है। तो दो चीज बताई, एक हु एम आई, कि हकीकत आप कौन है। दूसरी बात बताई, आपको सुखी होना है तो अपने मन वचन काया से किसी को दुख न दो, और सुख नहीं दोगे तो चलेगा, पर दुख न दो, वो सुख दिया बराबर है। ये कलयुग की भाषा है। सुख किसको देने जाएंगे आप? वो जाएंगे तो बोलते कि अभी तो देखो उनको कुछ घाट होगा, कुछ स्वार्थ होगा, अभी मेरे लिए कुछ काम करने हेल्प करने के लिए आए। इसलिए अच्छा बोलते हैं. तो कलयुग में सुख देने के लिए गए तो भी उसको नेगेटिव विचार आएगा। इसलिए कलयुग की डेफिनेशन क्या है? आप किसी को दुख न दो, मन से, वाणी से और काया से, अथवा भाव करो, तो आप सुख दिया उनको। आप बहू है आपकी, ये बहू है ना, ये दिख रही है, दोनों है, चलो व्यवहार से बहू है, तो आप मानते हैं दिख रही जैसे, तो कुछ दुख हुआ बोलने से तो अब माफी मांग लें, तो जैसे बहू को, बेटी को माँ के लिए हुआ, तो इस तरह से माफी मांगने की। भगवान क्या बोलते हैं, क्या किया उसकी कीमत नहीं है, कौन सी भूल हो गई वो कीमत नहीं है, मगर आप भूल की माफी नहीं मांगते। माफी कब मांगेंगे कि आपको रियलाइज होगा दिस इज माय मिस्टेक। जब तक आपकी भूल की महसूस नहीं होगी तब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। देखना કેટલો ટાઈમ થયો, નહીં તો પદ લઈ લો, એકાદ પદ લે પછી અમને સત્સંગ માટે આપીએ। હા, કઈ પેજ પૂછે છે? આમાં તો પેજ 10-11 લખ્યું છે. 211. પદ વાણી જતા ફૂલી ઓકે સર. Satisfied.
આવું વોશરૂમ ટેબલ આ મુકાય તો મૂકો ને મારા પગ લાંબા થાય હા, એ મૂકશે તમે બેસો તમે ઉભા ના થતા ના ના હું તો બેઠી છું આપણે જેમ છે બધું બંધ છે. બેઠી છું, બતાવો ઉપર જાઓ ઓકે ઉપર સામે રહી और आरती है मगर हम कुछ हिंदी में थोड़ा प्रोनाउंस हो जाता है. ચાલો પાણી જોઈ જય સચ્ચિદાનંદ ચલિए ત્યાં આવજો પાણી ઉતાવળ વાણી જલતા ફૂલની ગુથાય એવી માળ વાણી જલતા ફૂલની એવી માળ એક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરા મુક્તિ નથી જોતી વેશને જાત મુક્તિ નથી જોતી કૃષ્ણે રાત જ્ઞાનીને આદિન પરમ મોક્ષધામ જ્ઞાનીને આદીન પરમ મોક્ષનામ ખેતરના જ્ઞાન દાણે દાણે ઉલ્લાસ ખેતરના જ્ઞાન નિદાણે ઉલ્લાસ હાથિયા થોર માએ પ્રગટે સુવાસ હાથિયા થોર મારે પ્રગટે સુવાસ જ્ઞાન બિંદુમાં છુપાણી સાગરની પ્યાસ જ્ઞાન બિંદુમાં છુપાણી સાગરની પ્યાસ પ્રધાને સંજીવક વાણી વિલાસ મૂળદાને સંજીવ પાણી વિલાસ શ્રુત જ્ઞાન અનુગુણા સાતિયાની માંગ શ્રુત જ્ઞાન ઈમાન જહુ દિશે નાચી ઉઠે આત્મન સજાગ નાચી ઉઠે આત્મન સદા પાણી જલતા ફૂલની ગુથાય એવી માળ પાણી જળતા ફૂલની ગુથાય એવી માળ પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરા ઊંડા સર્પિણી તીટ આશ્ચર્યકાર નવસર પેણી દે આશ્ચર્યકાર અસંયતિ પૂજા સુષમણા શ્વાસ અસંયતિ પૂજા સુષુમણા શ્વાસ સતયુગના દર્શન કડી કાળમાં સતયુગના દર્શન ઘડી કાળમાં ના ચરણમાં પ્રાપ્ત મોક્ષધામ પ્રભુના ચરણમાં પ્રાપ્ત મોક્ષધામ ઈ આંદોલન મંદિર ને દ્વાર અતિ આંદોલન મંદિર ને દ્વાર ઘટની દિવાળી આત્મદીપ માળ ઘટની દિવાળી આત્મદીપમાન
નથી જોતી વેશને જાત મુક્તિ નથી જોતી વેસને જાત આધીન પરમ મોક્ષધામ આધીન પરમ મોક્ષધામ રાગ દ્વેષ બીજ ને પ્રજ્ઞાધારી રાગ દ્વેષ બીજને પ્રજ્ઞાધારી સમૂળ ખેડી નિંદી રહે સમૂળ ઉકેડી નિંદી રહે ઉદ્ગલની કરામત રમણામાં ઉદગલની કરામત રમણામાં પૂર્ણ અનાસક્ત જ્ઞાની રહે સંપૂર્ણ અનાસક્ત જ્ઞાની રહે સંસારે પ્રગટ્યો આ કર્મ ચિરાગ સંસારે પ્રગટ્યો અક્રમ ચિરાગ વિતરાગી આત્મા વધેલા જવાબ વિતરાગી પરમાત્મા વધેલા જવાબ તરતા ફૂલની કુથાય એવી માળ પાણી જળતા ફૂલની ઉતાય એવી માં એક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ રાગ દ્વેષ બીજને પ્રજ્ઞાધારી રાગ દ્વેષ બીજને પ્રજ્ઞાધારી સંપૂર્ણ ઉકેડી નિંદી રહે સમૂળ ઉકેડી નિંદી રહે ગલની કરામત રમણામાં ઉદગલની કરામત રમણામાં પૂર્ણ અનાસક્ત જ્ઞાની રહે સંપૂર્ણ અનાસક્ત જ્ઞાની રહે સંસારે પ્રગટ્યો આ અક્રમ ચિરાગ સંસારે પ્રગટ્યો આ અક્રમ ચિરાગ વિતરાગી પરમાત્મા વધેલા જવાબ વિતરાગી પરમાત્મા વધેલા જવાબ પાણી ધરતા ફૂલની કુથાય એવી માળ પાણી જળતા ફૂલની કુટાય એવી માળ એક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ અનવાણીને દેહની અવસ્થાનો વાણીને દેહની અવસ્થાનો જ્ઞાની જ્ઞાતાને દ્રષ્ટા થશે જ્ઞાની જ્ઞાતાને દ્રષ્ટા થશે ઉદ્ગલ મિશ્રણ અસાર સંસારે સાર સંસારે જ્ઞાની તન્મય શુદ્ધ આત્મમાં વસે નાના અવતારને ક્યાંય નહીં ડાક અવતારને કાય નહીં એ ગાડીને ગવડાવ્યો વિતરાગ પોતે ગાઈને ગવડાવ્યો વિતરાગ વિચારે કાળ કૂદ વર્ષો 10 લાખ વિચારે કાળકૂદ વર્ષો 10 લાખ નિર્કી હૈયે હવે સહજરા દાદાને નિર્જયે આવે સહજરા દાદાને નિર્કી હૈયે આવે સહજરા દાદાને નિર્જયે આવે સહજરા ધરતા
એની ગુથાય એવી માં. વાણી કરતા ફૂલની ગુથાય એવી માં. એક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરા. પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરા. જય સચ્ચિદાનંદ. એ હા, આમ તો સરળ છે પણ બહુ મોટું ગહન છે એમાં વાત કહેલી. હા. લાવો લાવો બુક લાવો. વાણી ઝરતા ફૂલની ગુથાય એવી માળ હમ. પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ. એટલે વિતરાગ પુરુષની જે વાણી છે એ પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી છે હમ. અને એ પોતે વાણીના પણ માલિક નથી નથી. અને એ વાણી ઝરે છે. શું છે? ઝરે છે, બોલતા નથી. બોલતા નથી એ હમ. ઝરે છે. ઝરે છે. અને એકે એક વચનની અંદર એમની પોતાની જે વિતરાગતા છે એમ એ ખુલ્લી થાય છે. હમ. જ્ઞાની પુરુષની તીર્થંકર ભગવંતોની મોટામાં મોટી ઓળખ શું છે એમ તો કે શાદવાદના સિદ્ધાંત ઉપર એ વાણી નીકળ્યા કરતી હોય. હમ. હમ. પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ. ઘણા બધા આપણે તેરાપંથી એક બહુ મોટો પંથ છે. હમ. એના મોટા આચાર્ય તુલસી થઈ ગયા. હમ. તે અમદાવાદમાં શાહીબાગમાં એમનો એક બહુ મોટો ઉપાશ્રય છે. તે એ આપતવાણી વાંચીને ખાલી આપતવાણી વાંચી અને એ આચાર્ય ભગવાન અત્યારે તો બીજા આચાર્ય છે પણ એ વખતે મુનિ નથમલજી કરીને હતા. હમ. હમ. એમને દાદા ભગવાનના દર્શન કરવાની ભાવના થઈ હમ. એમ કે આ વિતરાગ પુરુષની વાણી છે એમ હમ. અમારે દર્શન કરવા છે એમ. એટલે કે છે પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ એમ. અને આપણે બધા લોકો પણ તમે જોઈશું તો કોઈને કોઈ આપતવાણી આપણી પાસે આવી હોય અને એ વાંચી હોય અને આપણે જ્ઞાન લેવા પ્રેરાયા હોઈએ એવું પણ બની શકે એમ વિતરાગ. હમ. એટલે કોઈ એક પક્ષની ના હોય એમ હમ. સંપૂર્ણ નિષ્પક્ષપાતી વિચારસરણી હોય હમ. અને એ જ વિતરાગ છે. અને જેમની દ્રષ્ટિમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ખોટી નથી એમ. બરાબર. કોઈ પણ વ્યક્તિ ખોટી નથી. હમ. એટલે કે જે પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ. ખોટી નથી, ધેટ મીન્સ કે તો કર્મના ઉદયના આધીન બોલે છે કે કરે છે એટલે. હા એટલે એને દેશ ના કહી. દેશના જેમ ટેપ રેકોર્ડર વાગતી હોય તો એમાં કોઈ બોલનારો છે ના. નથી પણ જે રેકોર્ડ થયેલું છે એ જ બોલ્યા કરે છે. એટલે બોલનારની સત્તા બોલનારના હાથમાં નથી. હાથમાં નથી એમ. બરાબર. અને વાણી એ પરિગ્રહ છે ઓહ. એ દાદા ભગવાને ખુલ્લું કર્યું એમ. હમ. હમ. બધા લોકોએ વસ્તુને પરિગ્રહ કયો. શું કહ્યું? વસ્તુને પરિગ્રહ કયો. બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરવામાં પડ્યા એમ. સમજ પડી? હમ.
પણ વ્યાખ્યાન કરી રહ્યા છે એ પણ પરિગ્રહ છે એ ખબર ના પડે. સાચી વાત. અને કોઈ પણ સાધુ સંત હોય એને તમે ઇન્વાઇટ કરો એમ, પણ કહેવાનું તમારે બોલવાનું નથી, આજે તમારે ખાલી સાંભળવાનું છે. જુઓ પછી તારે ખરું જ્ઞાન બહાર આવે. કારણ કે બધા પ્રવચનકારો, લેક્ચર આપનારા અને પડી સત્સંગ કરનારા, એની અંદર એની વાણીમાં એટલું બધું એની અંદર સુખ આવે. એમાં અમે આવી ગયા હો. હા, તમારાથી ના કહેવાય પણ આ તો અમને ખબર પડે ને. આજે સ્ટેજ ઉપર 10 આપતા પુત્રો બેઠા હોય, બરાબર છે, પણ દરેકને અંદર બોલવું છે, કોઈને ગાવું છે. પડી પણ એ જે ઉપયોગ છે, એટલે એ જ્ઞાની પુરુષ એ દ્રષ્ટિ માત્રથી કલ્યાણ કરે છે. શેનાથી કરે છે? ખાલી દ્રષ્ટિ પડે, કારણ કે શુદ્ધાત્મા સિવાય કશું જોતા નથી. એનું જે પૂતગલ સ્વરૂપ છે એ પૂતગલ સ્વરૂપને બાદ કરી